वेल, सो आगे बढ़ते हैं और अब हम इस पार्ट में इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करेंगे एंड वी विल क्रिएट अ सर्कल with the help of this 8 point symmetry concept. Okay, so to create it with the help of 8 point symmetry concept, सबसे पहले हमें ये समझने की ज़रूरत है कि हमें कैलकुलेशन 2 पाई तक करने की ज़रूरत नहीं है, हमें कैलकुलेशन करनी है पाई बाई 4 तक. ओके, सेकेंडली हमारे पास जो पॉइंट्स आए हैं इनके कुछ कॉम्बिनेशंस हम इस्तेमाल करेंगे, यानी कि फर्स्ट पॉइंट हमने लिया एक्स वाई, सेकेंड हम लेंगे वाई एक्स एंड सो ऑन. This has already been done in this part. I'm just copying it from here. So what happens is ये लाइन लिखी गई है इसके कलर्स अलग करने के लिए, ताकि आप पहचान पाएँ कि कौन सी लाइन क्यों कौन सा वाला डॉट क्यों प्रिंट हुआ है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल दिस वन विल बी लुकिंग लाइक रेड कलर. So let's see whether it is generated with the help of all these different points. Like first point I have taken is xy, second minus x plus y, third one is minus x minus y, fourth one is plus x minus y, then yx minus x minus y plus x, minus y minus x, and then minus y plus x. Plus y minus x. So these are the points that we have taken. So we have total 8 points. Let's execute the program first, then we'll remove the colors and we'll see it in one color. Okay, so I am putting again radius equal to 100, and here you see different colors are generated. हर एक कलर अपने आप में किसी एक पॉइंट को उसमें से शो कर रहा है कि मतलब 45 डिग्री का हिस्सा किसी एक सेक्शन से बना है. ठीक है, सो इन दिस वे यू कैन फाइंड द होल प्रोग्राम. नाउ आई जस्ट वांट टू सी इट इन वन कलर. ओके, just remove all the colors. ओके, सो हमारे पास पॉसिबल पॉइंट्स जो थे एक्स वाई माइनस एक्स प्लस वाई माइनस वाई प्लस एक्स माइनस वाई, देन वाई एक्स minus y plus x minus y minus x and minus y minus x plus y minus x. So all 8 combinations we have taken. I am just increasing the pixel size. So GL point size is like 2 pixels instead of 1. Okay, now just execute the program, and while execution you will find that this time it is making same number of points, but you can see with less number of calculation हमने पिछली बार के 1/8 की है. ठीक है, बट हमें फिर भी लगता है कि अभी कुछ गुंजाइश है, कुछ पॉइंट्स हम बार बार कैलकुलेट कर रहे हैं. ठीक है, आपको मेरी बात यहाँ से नहीं समझ में आएगी. आई एम जस्ट कैलकुलेटिंग ऑल द पॉइंट्स एंड शोइंग यू here that what are the points that we are calculating. Okay, so x y radius and theta. Radius we have taken is 100. Okay, so it is not going to change. theta की initial value 0 है. ठीक है, थीटा में जो हम इंक्रीमेंट कर रहे हैं ये 0.01 का कर रहे हैं.
the points that we are calculating is equal to radius multiplied with cos of theta, and here is radius multiplied with sine of theta. Okay, just there is one small change, that for radius just put here dollar, and in the same way just put here डॉलर साइन, सो दैट रेडियस के लिए फॉर्मूला मॉडिफाई ना हो. ठीक है, वी वांट टू मॉडिफाई इट फॉर थीटा, बट आई एम नॉट लुकिंग टू मॉडिफाई इट फॉर रेडियस. We are looking for the theta unless the theta goes to 45 degree, so it will go very longer. Sorry, I have taken very long range, but doesn't matter. Let's see, हम क्या देखना चाहते हैं कि हम कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो बार बार कैलकुलेट कर रहे हैं. ठीक है, जस्ट सी, पहला पॉइंट मेरा है 100,0. ठीक है, जो एक्चुअल हम शो करेंगे मैं यहाँ लिखना चाहता हूँ. $100,0 is the first point, and in the same way you can find here second point मेरा 100,1, 100,2, 3, 4, 5 and these points are acceptable. ठीक है, बट कुछ एक लेवल के बाद आपको दिखेगा कि कुछ जगहों पे हम सेम पॉइंट को 2 बार 3 बार कैलकुलेट किए जा रहे हैं. ठीक है, मीन्स देयर इज नो चेंज, स्टिल वी आर कैलकुलेटिंग. एंड व्हाई वी आर कैलकुलेटिंग इट? बिकॉज वी हैव टेकन रॉन्ग एल्गोरिथम. 100 की जगह अगर रेडियस हमारा 10 होता, उस समय देखिए 10,0 मेरा पहली बार में निकल गया था. इसके बाद मेरा अगला पॉइंट 10,1 शो होना है, बट आई हैव कैलकुलेटेड इट फॉर सो मेनी टाइम्स हियर. ओके, जस्ट चेक इट आउट. इक्वल टू इफ दिस वन इज इक्वल टू whatever the value just above it, then it is 1, else sorry, then it is the value just above it plus 1, else it is 1. Okay, this is my way to find out duplicacy, and just you can see that how much duplicacy is there in first 147 वैल्यूज़. पहली वैल्यू मेरी 6 बार रिपीट हुई, दूसरी वैल्यू 10 बार रिपीट हुई, 10 बार, देन 10 बार, एंड जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए ये रिपीटिशन बढ़ता चला गया. 12 बार, 14 बार, 17 बार, 24. गेटिंग मी? सो जैसे ही हम 45 डिग्री के क्लोज पहुंचेंगे ये रिपीटिशन और ज़्यादा बार होगा, यानी कि हम एक ही पॉइंट को कई बार कैलकुलेट कर रहे हैं, 25-25 बार कैलकुलेट कर रहे हैं, विच इज़ नॉट रिक्वायर्ड एट ऑल. ठीक है, व्हाट शुड वी डू? जस्ट सी द एल्गोरिथम दैट वी आर फॉलोइंग. ये प्रॉब्लम उस एल्गोरिथम की है, हमें एल्गोरिथम में कुछ चेंज करना पड़ेगा. हम क्या करेंगे? अभी तक हम जस्ट ये चेक कर रहे थे कि सर्कल के लिए इक्वेशन क्या होती है और उस इक्वेशन के हिसाब से हम आगे बढ़ रहे थे. अब हम क्या करेंगे? वी विल जस्ट चेक दैट वेदर वी आर ऑन द सर्कल और नॉट. ठीक है, यानी ब्रेसन-हेम एल्गोरिथम. ब्रेसन-हेम एल्गोरिथम में लाइन में हमने क्या किया था? हम जस्ट चेक कर रहे थे कि हम नेक्स्ट पॉइंट जो शो करने वाले हैं वो करेंट पॉइंट के बगल वाला या उसके ऊपर वाला हो सकता है. In case of circle, what we can do here is
suppose this is your graph paper, okay, and if this is your graph paper, suppose you are at the top point of the circle here, तो जो अगला पॉइंट आप दिखा सकते हैं वो कौन सा होगा? या तो ये हो सकता है या ये हो सकता है, ठीक है, यानी या तो जस्ट बगल वाला पॉइंट शो करोगे या उसके नीचे वाला पॉइंट शो करोगे. देयर इज नो अदर पॉइंट दैट वी आर गोइंग टू शो हियर, ठीक है. तो हम क्या करें, हम सारे पॉइंट्स को कैलकुलेट करने की बजाय हम चेक करते हैं कि ये पॉइंट या ये पॉइंट, इन दोनों में से कौन सा सर्कल के ऊपर है. सर्कल के ऊपर कोई पॉइंट है, इसके लिए क्या इक्वेशन होती है? इसके लिए इक्वेशन होती है डिस्टेंस फ्रॉम सर्कल का स्क्वायर, यानी डी स्क्वायर इज गिवन बाय आर स्क्वायर, और यू कैन से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, or you can calculate it in the help of with the help of r square minus x square plus y square का होल स्क्वायर, ठीक है. सो ये जो आपने कैलकुलेट किया ये फॉर्मूला d, सॉरी इट्स एक्चुअली d स्क्वायर, सर्कल से कितने डिस्टेंस पे कोई पॉइंट है ये उसको कैलकुलेट करने के लिए होता है. अगर इसकी वैल्यू पॉजिटिव होती है दैट मीन्स द पॉइंट इज आउटसाइड द सर्कल, ठीक है. एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू जब आर स्क्वायर से ज़्यादा होगी तो पॉइंट इज आउटसाइड द सर्कल, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू आर स्क्वायर से कम होगी, इन दैट केस इट इज़ इनसाइड द सर्कल, ठीक है. हम क्या करते हैं, डिसीजन पैरामीटर इसी फॉर्मूले की हेल्प से कैलकुलेट करते हैं. हम एज्यूम करते हैं कि इन दोनों के बीच में एक पॉइंट है, और वो पॉइंट जो है उसको हम चेक करते हैं कि वेदर दिस पॉइंट इज इनसाइड द सर्कल और इट इज़ आउटसाइड द सर्कल. इफ़ इट इज़ इनसाइड द सर्कल तो हम नीचे वाला शो करेंगे, इफ़ इट इज़ आउटसाइड द सर्कल देन हम ऊपर वाला शो करेंगे, ठीक है. बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला इफ़ वी कैलकुलेट द डिसीजन पैरामीटर वी विल गेट दैट our first decision parameter is 5/4 minus r, ठीक है. हमें तो बस केवल अंदर होना या बाहर रहना चेक करना था, तो 5/4 में से ना घटा के हम इसको 1 माइनस आर कैलकुलेट कर लेते हैं. 1 माइनस आर अगर नेगेटिव है तो एक्स वाई में कोई चेंज नहीं होगा, अगर ये पॉजिटिव है तो वाई को डिक्रीमेंट कर दिया जाएगा. नाउ जस्ट सी, नेक्स्ट पी को कैलकुलेट करने के लिए हम चेक करते हैं वेदर पी के इज़ नेगेटिव और नॉट. इफ़ इट इज़ नेगेटिव देन हम क्या करेंगे, करेंट पॉइंट को शो करेंगे. नेक्स्ट पॉइंट के लिए हम y के अंदर कोई चेंज नहीं करेंगे, और x के अंदर x हमेशा इंक्रीमेंट होता जाएगा 1 से, ठीक है. जो हमारा नया p निकलेगा दैट p विल बी 2x प्लस 1, ठीक है. इसी तरीके से अगर हमें अगर पी के की वैल्यू इक्वल टू या ग्रेटर देन 0 है, यानी पॉइंट बिल्कुल सर्कल के ऊपर होता है या सर्कल से बाहर होता है, इन दैट केस हम y की वैल्यू डिक्रीमेंट कर देते हैं, और पी के की नई वैल्यू कैलकुलेट करते समय y का एक टर्म ऐड हो जाता है यहाँ पे. सो हियर यू कैन फाइंड that we have got another p another p with this formula, and here we have got another p with this formula. So हमने नया p कैलकुलेट कर लिया. अब यही प्रोसेस हम तब तक चलाते रहते हैं जब तक कि x बड़ा होता है और x छोटा होता है और y बड़ा होता है. जैसे ही x की वैल्यू y से क्या कहते हैं कि बड़ी होने लग जाती है, तुरंत हम वहीं पे सर्कल को स्टॉप कर देते हैं. वी डोंट गो अहेड. नाउ देयर इज़ वन टास्क फॉर यू. यू हैव टू क्रिएट अ प्रोग्राम इन C++ or any language whatever you like
to generate Bresenham Bresenham and DDA line, and in the same way you have to discuss different steps in generation of circle using Bresenham algorithm. In next part of the session we will discuss about how we can generate circle with the help of Bresenham algorithm.